Hello, literary enthusiasts. Welcome back to Literature Femter, the channel where we dive deep into the world of literature and explore its captivating elements. I'm your host Iman Fatma, and today we embark on an exciting journey into the realm of Eugene O'Neill's masterwork, Morning Becomes Electra. Art of characterization in Morning Becomes Electra is the key aspect of Eugene O'Neill's drama. Here are 10 points that highlight the artful characterization in the play. So, number 1, the first point is psychological depth. The characters in the play are depicted with rich psychological depth, allowing the audience to understand the inner thoughts, desires and conflicts. तो सबसे पहले हम इसमें साइकोलॉजिकल डेप्थ देखते हैं, यानी कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं दे हैव द साइकोलॉजिकल डेप्थ और ऑडियंस उसको अंडरस्टैंड कर सकती है और उनके इनर थॉट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है. O'Neill's delves into their complex motivations and explored their inner worlds. और हम इस ड्रामा में कैरेक्टर्स के इनर फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्रेस होते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि हाउ दे आर मोटिवेटेड एंड हाउ दे गेट अनॉयड विद समथिंग. सो नंबर 2 इज़ conflicting motivations. The characters exhibit conflicting motivations, adding complexity to their actions and choices. अब क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में conflicting motivations हैं जो कि complexity create करती हैं उनके actions में, उनकी choices में. They feel difficulty in choosing and choosing different kinds of things and they are not firm into their own decisions. Their desires, fears and personal agendas often clash, leading to internal and external conflicts. उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनके खौफ हैं, उनके जो पर्सनल मोटिव्स हैं वो क्लैश में आ जाते हैं और उससे क्या होता है कि जो उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं. यानी वो क्या करते हैं, दे फील जस्ट कन्फ्यूजन इन ऑल द थिंग्स के हाउ टू डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. सो नंबर 3 पॉइंट इज moral ambiguity. The characters in Morning Becomes Electra are not easily classified as purely good or evil. हमें नहीं पता चलता कि कौन सा कैरेक्टर फुली गुड है और कौन सा कैरेक्टर फुली बैड है. वी आर जस्ट कन्फ्यूज इन द अमलगमेशन. एक हमें मिलता है, एक मिक्सचर मिलता है कि somebody is good and somebody is bad as well. तो हमें एक मिक्सचर मिलता है इसके अंदर, इस प्ले के अंदर. They possess moral ambiguity with their actions and choices reflecting a mixture of noble and flawed qualities. और उनके अंदर एक noble qualities भी होती हैं यानी कि good qualities भी होती हैं और साथ में bad qualities भी होती हैं जिसकी वजह से उनका जो कैरेक्टर है वो क्या confusing कैरेक्टर बन जाता है जो कि रीडर पे, जो रीडर है उसके ऊपर एक ऐसी इन्फ्लुएंस पड़ती है कि he feels confused. This adds depth and realism to their characterization. तो ये चीज़ एक रियलिटी बेस्ड लगती है. ऑब्वियसली हम ह्यूमन बींग्स जो हैं रियल लाइफ में हम भी मिक्सचर हैं गुड एंड बैड थिंग्स का. तो ये दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एंड बेस्टेस्ट थिंग एवर आई हैव सीन इन दिस ड्रामा. सो नंबर 4 पॉइंट इज़ symbolic representations. The characters in the play often serve as symbolic representations of larger themes and concepts. तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर उसमें डिफरेंट थीम्स को वो सिम्बलाइज कर रहे हैं. ठीक है, और हर कैरेक्टर जो है वो किसी न किसी थीम को सिम्बलाइज करता है और ये बहुत बेस्ट आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन है जो यूजीन ओनील ने की है. तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. क्रिस्टाइन मैनन कैन बी सीन एज अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ डिज़ायर while Ezra Manon represents the oppressive weight of the past. Ezra Manon में past की oppression नज़र आती है और जो क्रिस्टाइन मैनन है शी इज़ symbolic of destructive power of desire. वो अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं. So number 5 point is transformation and growth. This is our 5th point, that is transformation and growth. So throughout the play, characters undergo significant transformations and growth driven by their experiences and the conflicts they face. तो जितने भी problems वो face कर रहे हैं, जितने experience उनके हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उनके अंदर change आ रहा है. Transformation का मतलब होता है change from one state to another और growth का मतलब है कि हम एक better जो है चीज़ को adopt करके क्या करते हैं, grow करते हैं, stand out करते हैं. These transformations contribute to their overall characterization and provide insights into their journeys. और ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं कि ओवरऑल कैरेक्टर स्केचेस जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं हाउ ब्यूटिफुली कैरेक्टराइज्ड दे आर बाय यूजीन ओनील. सो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लेने हैं. आपने इन हेडिंग्स के साथ कुछ भी आप एडअप करके अपने क्वेश्चन को इन्हांस कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स.
द कैरेक्टर्स रिलेशनशिप्स विद अनदर आर कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड। ठीक है, ये जो कैरेक्टराइजेशन हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि रिलेशनशिप्स जो आपस में है वो कॉम्प्लेक्स हैं और लेयर्ड हैं, रिफ्लेक्टिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन को सिम्बलाइज करता है ये। और क्या दिखाया जा रहा है हमें कि द डायनामिक्स ऑफ लव, हेटेड, लॉयल्टी एंड बेट्रियल एड डेप्थ टू द कैरेक्टर्स पोर्ट्रियल एंड ड्राइव द प्लॉट। कि क्या जो लव है, हेटेड है, लॉयल्टी है, बेट्रियल है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैरेक्टर्स के अंदर डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं और फिर उससे क्या हो रहा है, हमारा प्लॉट जो है वो ड्राइव आउट होता है, यानी हमारी स्टोरी चलती जा रही है विद द एक्सप्रेशंस ऑफ दीज थिंग्स इन द कैरेक्टर्स। वी आर एबल टू नो कि कैसे एक प्लॉट को लिखा जाता है ताकि हमारी स्टोरी में एक ट्विस्ट आ सके। यूज़ ऑफ डायलॉग्स, ओनील्स स्किलफुल यूज़ ऑफ डायलॉग्स हेल्प रिवील द कैरेक्टर्स, पर्सनैलिटीज़, इमोशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। तो यूजीन ओनील ने बहुत ही अच्छे तरीके से डायलॉग्स का यूज़ किया है, जिससे क्या हो रहा है कि कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटीज़ रिवील हो रही हैं, उनके इमोशंस का पता चल रहा है, और उनके बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, जो उनके कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो उनके बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, उनको सिम्बलाइज किया जा रहा है। थ्रू देयर कन्वर्सेशंस द ऑडियंस गेन्स इंसाइट into their thoughts, beliefs and the complexities of the relationships। उनके कन्वर्सेशन से क्लियरली हमें उनके इनर थॉट्स का पता चल रहा है, उनके बिलीव्स का पता चल रहा है और उनके रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ का अच्छे से अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। So, number 8 is subtext and unspoken desires. The play employs subtext and unspoken desires, allowing the audience to infer the characters' true motivations and फीलिंग्स। तो हमें टेक्स्ट में सब टेक्स्ट भी मिलता है और अनस्पोकन डिज़ायर्स का भी पता चलता है, जो कि टेक्स्ट के अंदर एम्प्लॉय की गई हैं ताकि जो ऑडियंस है वो सब कुछ क्या कर सके, खुद से इंटरप्रेट कर सके। ओनील मास्टरफुली वीव्स दीज एलिमेंट्स इनटू द नैरेटिव, एडिंग डेप्थ टू द कैरेक्टर्स पोर्ट्रेयल। ओनील ने बहुत ही मास्टरफुली इन चीज़ों को वीव आउट किया है। क्या किया है, इस नरेटिव में डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ किया है, जो क्या कर रहे हैं, नरेटिव के अंदर डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं। और डेप्थ क्रिएट करने से क्या होता है कि हमें कैथारसिस मिलता है और बहुत सारी चीज़ों पे हम रीड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 9 इज़ फ्लॉड प्रोटैगनिस्ट। द प्रोटैगनिस्ट इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा आर फ्लॉड एंड कैरी पर्सनल बर्डन्स। यानी कि वो एक होती है ना चीज़ फ्लॉ, मिस्टेकफुली होते हैं, वो मिस्टेक से भरे हुए होते हैं और वो क्या करें, अपनी पर्सनैलिटीज़ के साथ बर्डन्स लेकर घूम रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटैगनिस्ट हैं। देयर फ्लॉज कंट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल कैरेक्टराइजेशन, मेकिंग देम रिलेटेबल एंड मल्टी डायमेंशनल। और यही चीज़ें उनके कैरेक्टराइजेशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं और क्या कर रही हैं, उनको मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर बना रही हैं। लाइक दे आर द अमलगमेशन एंड मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड एंड अदर क्वालिटीज़ एज वेल। Number 10 is historical and cultural context. The characters are shaped by the historical and cultural context in which the play is set. कैरेक्टर्स जो कि हैं उनके साथ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी चल रहा है और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्ले के कैरेक्टर्स को शेप किया गया है और दिखाया गया है कि हाउ हिस्ट्री इफेक्ट्स द पीपल्स प्रेजेंट, हाउ पास्ट इफेक्ट्स द प्रेजेंट. O'Neill's provides insight into their background, societal influences and impact of their upbringing, adding layers to their characterization. ओनील बताते हैं कि जब उनकी जो जब से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है कि किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग की गई है, क्या उनको इग्नोर किया गया है, क्या उनको लव किया गया है, क्या पेरेंट्स के जो रिलेशनशिप्स थे वो बैड थे, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं. दीज पॉइंट्स कलेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट द आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा. O'Neill's skillful portrayal of multi-dimensional characters with complex motivations, psychological depth and intricate relationships contribute to the play's dramatic impact and enduring literary value. तो जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी, कैरेक्टर्स का मल्टी डायमेंशनल होना, उनकी कॉम्प्लेक्स मोटिवेशंस, उनकी साइकोलॉजिकल डेप्थ, उनके सेंसिटिव रिलेशनशिप्स वैल्यू ऐड करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.